ऑलराइट. सो हीट चैप्टर में पहले क्या पढ़ना है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट. हमें क्या पढ़ना है हीट के चैप्टर में, ठीक है. तो हीट के चैप्टर में व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, ठीक है. I know that all of you touch करके बता दोगे कि ये तो गर्म है, ये तो ठंडा है, right? You all will do that, of course. Like everybody, all of us do that. But we will actually study what is the difference between hot and cold. ठीक है? Next thing that we're going to learn about is measuring temperature. How do we measure temperature? After that, how to read a thermometer. अगर thermometer read कर लिया तो choice of thermometric liquid. अब thermometric liquid क्या है ये भी पता लगाएंगे, ठीक है. Different kinds of thermometer. उसके बाद we're going to take a look at transfer of heat. How does transfer of heat takes place? Then conductors, insulators and heat and conduction, convection and radiation. ठीक है. So these are the things that we're going to cover in today's session. All right. Now don't get scared. Don't think that it's a lot, but I'm pretty sure that you all will understand. You all are smart kids, aren't you? All right, so let's take a look at it. What is the difference between hot and cold? So take a look at this, okay? You have cold coffee. What is cold coffee? Cold coffee is cold. You will definitely let me know that, right? If I talk about pizza, you have pizza warm or that is hot. I mean, हाँ पता है कि अगले दिन सुबह उठ के भी ठंडा पिज्जा खाने में अच्छा लगता है. But then when you order pizza, you always eat it hot or warm, right? Next thing, iced tea. It's cold. Maggie is hot, or a spoon dipped in hot tea. What will it be? It'll be hot, right? So how do you tell what if a substance is hot or if a substance is cold? How do you tell the difference? Usually what we do is always touch it and tell it, right? You touch and you tell people that, oh, this is hot, this is cold, right? We do that. अब बताओ, अगर if something is boiling at 100 degrees Celsius, will you be able to touch it? No, you won't be. है ना? Correct? Or if something is absolutely freezing, you will not even be able to, take out your hand and touch it. You will either be frozen, maybe your hands will get, frozen, or if something is really, really hot, you will get burned, right? So this is not just the way to let know other people if something is hot and cold. And not just that, we will also learn something that says that our sense of touch is not reliable. But before, let's take a look at how our sense of touch is not reliable. ठीक है? Our sense of touch is not reliable. So what can we do is, you can actually do an experiment in your own home. Okay, so what will you do? You take 3 beakers or 3 bowls. ठीक है? 3 bowls लो, 3 कटोरे लो, बेसिकली 3 कटोरे लो. एक में डालो गर्म पानी. ठीक है? गर्म पानी एज इन लाइक 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म पानी डालो. इस वाले में डालो आप ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी जिसमें आइस डाल के रखा हो, इतना ठंडा पानी. और बीच में इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा पानी इसमें डालो. ठीक है? नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? डिप योर राइट हैंड इन द कटोरा 1 एंड डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कटोरा 3. ठीक है? थोड़ी देर के लिए रखो. उसके बाद क्या करो, दोनों हाथों को उठाओ एंड कीप इट इन द बी वाला, मिडिल वाला जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रखा था, मॉडरेट टेम्परेचर वाटर रखा था, उसमें डालो. ठीक है? अब क्या होगा इसमें? What will happen? Your one hand, like this hand, will feel that this water is very cold. But your this hand, left hand, when you have already kept it in ice cold water, right? So now when you dip it in the katora B, what will happen? You will feel that the water is too hot. So now can you imagine? आप ही के शरीर का, your own body, your own 2 hands, but ये तो धोखा दे रहे हैं. एक बता रहे हैं कि ये ज्यादा ठंडा है और एक हाथ बता रहे हैं कि ये तो ज्यादा गर्म है. So do you realize now that your sense of touch is always not reliable? Based on your body temperature, you will find that, the other temperatures around you are different. Cool? Now do you understand why it is not advisable that you should always touch and tell? So now that we cannot touch and tell always, I mean, we have realized that our sense of touch is not reliable. तो अब क्या करें हम? अब कैसे temperature measure करें? That's a question that arises in your head, right? So what are we going to do is, now we have introduced to this picture thermometer. So how are we going to, how are we going to measure temperature? We are going to measure it by using a thermometer. ठीक है? पर उससे पहले तो मैंने क्या बोला था? If not our touch, what is reliable to measure hotness of an object?
It is of course temperature, and the device that you use is thermometer. Let me just move aside and I think you can see it properly. Yeah, do you see it? How does a thermometer look? The thermometer looks like a long narrow glass tube with a bulb right here, right, with a bulb right here. And what do you see in the bulb? In the bulb you will be able to see that there is mercury. Have you ever noticed that? Have you ever noticed a mercury? Have you, not a mercury, sorry, have you ever noticed mercury? Right here you will find the mercury. ठीक है, और इसको ऐसे सीधा रखोगे तो आप देखोगे कि एक छोटा सा a very narrow line, like a very narrow line where the mercury passes and shows you the temperature. So this right here is known as what? It is known as clinical thermometer. Okay, what is it known as? It is known as clinical thermometer. ठीक है, समझ आ गया सबको? Okay, चलो, now let's move on and understand what exactly is clinical thermometer. ठीक है, clinical thermometer क्या होता है? So what is clinical thermometer? You can see that a clinical thermometer, as I just told you, what is it? A long, narrow, uniform glass tube. मतलब आप देख रहे हो, this whole shape is absolutely uniform. It's not like एक जगह पे काफी मोटा सा है और एक जगह पे एकदम पतला सा है. I mean, apart from this part, apart from just this part, the whole thermometer is actually very uniform, right? So this bulb contains the mercury, and then what happens is, if you just take a look at it like this, you will find that the small shining thread like this will just move on. All right, am I making myself clear? Clinical thermometer क्या है, समझ आ गया सबको? अब आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि how to read a thermometer. I mean, I understand there is a lot of text, but ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देती हूँ और आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, पक्का प्रॉमिस. Paka promise, you will understand everything. Don't worry about the text. Okay? Alright. In fact, if you want, I'll also move on in between just so that you can take a screenshot of the text that is written. So, how to read a thermometer? A lot of people actually do not know how to read a thermometer. ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप जैसे स्केल पढ़ते हो, you have a geometry box में एक स्केल होता है, right? तो स्केल में क्या करते हो आप? उस स्केल में आप सबसे पहले ये देखते हो कि यहाँ पे, तो सबसे पहले आप एक स्केल ले लो. स्केल पे आपको क्या दिखेगा? हमेशा यहाँ पे देखो बच्चा, ठीक है, तो स्केल में आपको एक मिलेगा ऐसा बड़ा डिवीजन, दूसरा एक और बड़ा डिवीजन, और बीच में होता है कई सारे ऐसे छोटे छोटे डिवीजन. राइट, करेक्ट, राइट. द सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू विद द थर्मोमीटर एज वेल. थर्मोमीटर को लो और अच्छे से देखो कि वेयर इज द बिगर मार्क्स के बिटवीन कितने सारे छोटे मार्क्स है, एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि एक छोटा डिवीजन कितना रीडिंग बता रहा है. ठीक है, alright, am I making myself clear? तो मान लो there is a temperature division, let's say this is 37 and this is let's say 38, और बीच में there are 10 division, तो एक division will be equal to 0.1. correct? Am I making myself clear? ठीक है, so that's exactly the same way you have to take a measurement in thermometer. सबसे पहले क्या करोगे? दो बड़ा डिवीजन का पता लगाओगे और उनके बीच में छोटे छोटे कितने डिवीजन है, ठीक है, वो पता लगाओगे. उससे आपको पता चल जाएगा कि एक छोटा डिवीजन कितना मेजर करता है. ऑलराइट, आफ्टर दैट, तो ये दोनों मैंने बता दिया, ये दो पॉइंट्स मैंने बता दिया. ठीक है, ऑलराइट. अभी आपको क्या करना है? वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ऑलवेज. क्यों? क्योंकि आपके अलावा भी और कई लोग होंगे जो इस थर्मोमीटर को इस्तेमाल करें. और थर्मोमीटर कब इस्तेमाल होता है? जब आप बीमार होते हो, है ना? When you are ill, when you are sick, you're not well, right? And you put it in your mouth to measure the temperature. So now you tell me, if you are not using an antiseptic solution to wash it down, won't the other person who is using it just after you will also get the disease that you are suffering from? That is why you are supposed to use an antiseptic solution to clean it. Moving on, hold it firmly and give it a few jerks. Why? Because it is quite possible that thermometer में जो mercury है, it will rise up based on the temperature that is there. Okay? तो क्या होगा? आप क्या करोगे? उसको अच्छे से jerk दोगे ताकि जो mercury है, that is absolutely in the bulb. ठीक है? और उसके बाद when you keep it in your mouth, it will rise up, it will expand and it will give you a good reading. ठीक है? Clear?
आगे बढ़ के, ठीक है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, यू आर सपोज टू कीप इट अंडर योर टंग, ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे, टंग के नीचे, एंड टेक इट आउट आफ्टर अ मिनट एंड टेक द रीडिंग, दैट्स इट, इजंट इट इजी? Precautions to be observed while using a clinical thermometer. अब देखो clinical thermometer में mercury है and you all know that mercury is toxic, right? तो अगर by any chance कुछ हो गया तो mercury is toxic and it will definitely harm you. तो इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, कुछ precautions लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है ताकि ये टूट के बाहर ना आ जाए या फिर हमें अच्छी रीडिंग मिले, है ना? तो हम देखेंगे क्या करना है, वॉश द थर्मोमीटर इन क्लीन वाटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको वॉश करोगे क्लीन वाटर में, क्लीन वाटर या फिर एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है, इधर क्लीन वाटर या फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और उसके बाद जग द थर्मोमीटर ताकि मर्क्यूरी की जो थ्रेड है वो बल्ब के अंदर रहे और इट शुड बी बिलो 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, it has to be below 36 degree Celsius, that is the normal temperature that you have of your body. While reading the temperature, do not hold the thermometer by the mercury bulb. Of course, when you have like let's say that आप मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ, तो मेरे टंग के अंदर रखा and you are supposed to measure it, ठीक है, तो मेरा मान लो my body temperature is right now at what? Maybe it is a lot higher than 36 degrees Celsius. So let's say that my body temperature is at 40 degrees Celsius, ठीक है, तो that means I have fever. और अगर आपको कोई फीवर नहीं है और आपने बल्ब में पकड़ के ऐसा नोट करने की कोशिश की तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर दिखाएगा, है ना, वो मेरे बॉडी का टेम्परेचर नहीं दिखाएगा, इसीलिए यू आर नॉट सपोज टू होल्ड इट बाय द बल्ब, बल्ब से मत पकड़ो, ऊपर पकड़ो और उसको देखो, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर यूज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर स्टोरिंग। अगर आपने एक बार यूज कर लिया है तो उसको अच्छे से रखने से पहले भी क्या करना है, आपको देखना है कि आपने उसको वॉश किया है। और एक और बात, जब आप जर्क कर रहे हो तो केयरफुली जर्क इट, ऐसा नहीं कि किसी टेबल के सामने घड़ंग तोड़ दिया उसको। मर्क्यूरी जो है इट इज टॉक्सिक, राइट। अब आप पूछोगे अगर वो टॉक्सिक है तो व्हाई आर वी पुटिंग इट इन आवर माउथ, वी माइट डाई। वैसे तो थर्मोमीटर इज एब्सोल्युटली सील्ड सो द मर्क्यूरी विल नॉट कम आउट, बट until and unless you don't jerk it and bang it somewhere else or you bite the whole thermometer, it is not gonna come out and it will not affect you, ठीक है, clear? all right, moving on, डिजिटल थर्मोमीटर। अब मैंने अभी बोला कि थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ग्लास वाली होती है उसके लिए काफी प्रिकॉशंस होने जरूरी होते हैं, राइट। There are a lot of precautions that you have to deal with, and it's also a little like a lot of people do not know how to find the divisions between the readings, and they go all like how to do it, right? So that is why we have got digital thermometers now. तो digital thermometers में क्या होता है, सबसे अच्छी बात है it does not use mercury, so there is no fear of toxicity, ठीक है। Also it is easier to read. अभी तो मैं आप किसी से भी पूछ लूं कि बेटा थर्मोमीटर रीड करना आता है, यू ऑल विल लाइक यस मैम व्हाई, because it is digital thermometer, it is showing you the result, you don't have to take a look at it, jerk it again, take a look at it, find out where the mercury is going for upward or not. You don't have to do all this, just put it in your mouth and it will show you the number, ठीक है। It doesn't require any precautions as a clinical thermometer. So yeah, it's a सोने पे सुहागा हो गया। अब जिसको नहीं भी आता है, everybody will know how to read a thermometer. तो digital thermometer is another kind of thermometer. And now moving forward, I will tell you what is the choice of thermometric liquid. तो मैंने क्या बोला था, जो ये mercury है, mercury जो आती है ना in the thermometer bulb, वो क्या है, that is a thermometric liquid, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक लिक्विड के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप पूछोगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एक सब्सटेंस की कैपेबिलिटी टू take like maybe 1 degree take heat and increase its temperature by 1 degree Celsius, ठीक है। क्या बोला मैंने, capability of taking some amount of heat and increase its temperature by 1 degree Celsius, that is known as specific heat capacity. So it has to have low specific heat capacity ताकि एकदम कम टेम्परेचर लेके भी 1 डिग्री सेल्सियस इसका बढ़ जाए, वरना क्या होगा,
आप रख दोगे कुछ और, आप रखोगे कुछ और, like to put it in your mouth to measure the temperature. You will keep it for 1 hour, for 2 hours. It will keep taking all the heat from your body, but it will still never show you the reading of your body temperature, है ना? तो इसी वजह से what is very necessary? It has to have low specific heat capacity. Moving on, it should be a good conductor of heat. And why should it be a good conductor of heat? अरे बाबा, अगर लकड़ी रख दिया मुंह पे तो लकड़ी आपको बताएगा कि हीट कितनी है? लकड़ी आपको बता पाएगा कि टेम्परेचर क्या है? नहीं बता पाएगा. तो इसीलिए you are supposed to have a good conductor of heat which can conduct some heat and tell you that the temperature has increased. ठीक है? Moving on, it should be opaque. Why should it be opaque? Mercury is also opaque. आप glass के अंदर भी mercury को देख सकते हो, right? It should be opaque so that you can see it, where it is moving, at which part it has stopped moving. You have to be able to see it, and that is why it should be opaque. ठीक है? High boiling point and low freezing point. High boiling point क्यों? अगर मानो थोड़ा सा अगर हीट लेके वो बॉयल हो जाते तो क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा और मान लो मर्क्यूरी बॉयल हो गया तो क्या हो जाएगा? आपको पता भी नहीं चलेगा मर्क्यूरी इतनी जल्दी बॉयल हो गई, है ना? और मानो 35 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस में अगर मर्क्यूरी फ्रीज हो जाती तो क्या होगा? 34 डिग्री सेल्सियस आपको ठंड लग रही है और मर्क्यूरी फ्रीज हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर कम हो गई है ना? राइट? तो इसीलिए द थर्मोमेट्रिक लिक्विड शुड हैव high boiling point and low freezing point. And lastly, something that is very very important is that uniform rate of expansion. Why is it very important? It has taken some heat energy from your body. ठीक है? Let's say that it has taken 1 joule. 1 joule energy ली और 1 degree Celsius increase हुई. 2 जूल एनर्जी ली तो अगेन 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुई. ठीक है? अब 3 जूल इंक्रीज हुई और वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई. तो इज दिस यूनिफॉर्म? 1 2 डिग्री सेल्सियस देन 5 डिग्री सेल्सियस. इट्स नॉट यूनिफॉर्म. सो दैट मीन्स व्हाट? इट विल शो यू wrong body temperature. ठीक है? तो इसी वजह से it is very necessary that every 1 joule energy that it is taking from your body, it should increase only by 1 degree Celsius. It should have uniform rate of expansion. It should expand uniformly. ठीक है? Not non-uniformly. All right? Clear, guys? Everybody, you all are understanding, right? So we are talking about different kinds of thermometer, right? Apart from clinical thermometer and digital thermometer, we also have लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर पता है क्या होता है? काफी लंबा होता है. देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर तो इतना सा छोटा होता है बस, है ना? लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज दिस लॉन्ग और उसकी टेम्परेचर रेंज पता है क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्यों भाई? क्योंकि when you are doing experiments in the lab, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम कम से कम टेम्परेचर चाहिए या फिर एकदम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. ठीक है? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में this range is very important. And moving on to the precautions of this, what is the precautions that laboratory thermometer में it should always be upright. ठीक है? upright, वो हमेशा सीधा होना चाहिए. ऐसे जैसे मैंने इसको रखा है ना यहाँ पे ऐसे करके तिरछा करके, it should never be tilted. ठीक है? It should always be upright. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बाहर निकाल के फिर रीड नहीं कर सकते like you do it in how you do it in clinical thermometer. आप मुंह से निकालते हो और उसके बाद पढ़ते हो. ठीक है? पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसा नहीं कर सकते. अगर if there is a setup, if there is a setup, let's say a lab setup जहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा हो तो आप रिएक्शन के पास जाके ऐसे करके देखोगे झुक के. ओके? इट शुड बी ऑन योर लाइन ऑफ साइट. आप झुक के देखोगे कि टेम्परेचर कहाँ पे है. यू आर नेवर गोइंग टू टेक इट आउट एंड रीड इट. व्हाई नाउ? I'm gonna tell you this, okay? Why should you not be doing this? Because आपने देखा होगा अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को एक बार अच्छे से देखोगे ना तो जस्ट राइट आफ्टर दिस बल्ब यू विल फाइंड अ किंक हियर. ठीक है? ऐसा कुछ एक मिलता है, एक ऐसा किंक मिलेगा छोटा सा which does not allow the mercury to fall down. But in case of laboratory thermometer this kink is not there, and what happens as soon as you take it out, what will happen? The temperature will fall down. ठीक है?
Am I clear now? The bulb should be surrounded by the substances from all sides. Bulb को जो है it should be surrounded. अगर आपने आइस रखा है तो चारों तरफ आइस होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ एक जगह पे आइस होगा तो नहीं चलेगा. All right? Get it? Clear? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है कि ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होती है. वेल दिस इज समथिंग दैट यू ऑल नो. देखो ये बहुत आसानी से समझ सकते हो. लेट्स से दैट देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी रिच. ओके, लेट्स कंसिडर दैट अ वेरी बिग बिजनेसमैन. ठीक है, मान लो अंबानी. चलो अंबानी है, ठीक है. अब अंबानी क्या करेगा, अंबानी अगर किसी मंदिर के पास जाता है और मंदिर के पास अगर जो वो है ना जो भिक्षा मांगते हैं तो अंबानी ही ना उनको पैसा देगा. जो भिक्षा मांगते वो तो जाके अंबानी को नहीं बोलेंगे कि भाई मेरे पास 10 रुपए आप रख लो. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो इसका मतलब है जिसके पास ज्यादा पैसे है वो जाके जिसके पास कम पैसे है उसको पैसे देगा. द सेम थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसके पास ज्यादा हीट है वो जाके जिसके पास कम हीट है उसको जाके हीट देगा. राइट? इट इज नेवर द अदर वे राउंड. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? द हीट flows from always hot body to cold body until they are not both in equilibrium. जब तक ये दोनों की टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाती या फिर दोनों की हीट एनर्जी इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा. ठीक है, इट इज नेवर द अदर वे राउंड. ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज नेवर गोइंग फ्रॉम यहां से यहां कभी नहीं जाता है. ये कभी नहीं हो सकता है, हमेशा यहां से यहां जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, क्लियर एवरीबॉडी? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इतना समझ आ गया? नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर. अब हीट ट्रांसफर होती है, अभी मैंने समझाया कैसे होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी. अब ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो ट्रांसफर होती है इसमें देयर आर 3 वेज ऑफ ट्रांसफर. ओके, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर. पहला वाला है कंडक्शन. कंडक्शन में क्या है, देखो कंडक्शन में सबसे बड़ी बात है कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड्स, ओनली एंड ओनली सॉलिड्स. ठीक है, जो भी कंडक्टर्स होते हैं ना जो हीट को बोलते हैं कि आ जाओ तो यू कैन गो थ्रू मी, दोज आर कंडक्टर्स. ठीक है, तो कंडक्टर्स जो होंगे सॉलिड कंडक्टर्स, only through them this process can happen. Conduction can happen only through what? Only through solids. ठीक है, not in liquids, not in gases. Okay, so what is the definition here? The definition says that process of heat transfer from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. अब क्या कर सकते हो, इस पे गैस जलाओ घर पे. ठीक है, एक चम्मच पकड़ो और गैस के उसमें बर्नर में रखो. क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यू विल फील दैट द अदर एंड जिसको आपने पकड़ रखा था वो तो टच ही नहीं कर रहा है फायर के साथ, पर वो भी हॉट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. हर एक सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स होता है, आपको पता है, मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट नहीं है. जस्ट द फैक्ट दैट जैसे ही हमने यहाँ पे आग दिया, राइट, यहाँ पे व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी राइट हियर. तो हीट एनर्जी हैज बीन प्रोवाइडेड हियर और क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जो भी लेट्स से कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, दूसरे वाले पास वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया, ये तीसरा वाला इसने चौथे वाले को ट्रांसफर किया. ऐसे ऐसे हीट ट्रांसफर होती गई मॉलिक्यूल में और यहाँ तक पहुंच गई. करेक्ट? ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ कंडक्शन हैपेंस. ठीक है, ऑलराइट. नाउ यहाँ पे क्या होता है, देखो द बॉडीज थ्रू विच हीट ट्रांसफर मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट. यहाँ पे इट इज अ कॉन्टैक्ट मोड, मतलब सारी चीजों को टच में रहना पड़ेगा. occurs only in solids where molecules are held by strong. This is exactly what I told you. ठीक है, the molecules vibrate about their mean position as they receive energy and pass it to the surrounding molecules. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मान लो कि मैं I am the first molecule right here. मैंने बताया यहाँ पे एक फर्स्ट मॉलिक्यूल है, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल मेरे को हीट दिया गया. ठीक है, मेरे को बहुत सारी एनर्जी दी गई. अब मेरे को एनर्जी दी गई तो क्या होगा, मैं नाचना शुरू कर दूंगी, मैं बहुत जोर से बोलना शुरू कर दूंगी. राइट, आई विल डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट्स क्वाइट पॉसिबल फॉर मी टू रिलीज द एनर्जी. तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल जो उसको एनर्जी मिल गई वो जंप करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा. इसके वजह से क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है दैट विल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज दिस वन हैज पुश्ड इट. राइट,
this one has pushed it, this one has been poking it कि अरे अरे सुनो सुनो तुम भी चालू हो जाओ, right? So this has happened, so this also starts vibrating. अब सेकंड दूसरा वाले ने क्या किया, उसने तीसरे वाले को एनर्जी पास कर दी, and that's how the whole energy get transferred to the other end. ठीक है, आ गया समझ सबको? चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में. कंडक्टर्स क्या होती है? कंडक्टर्स वो चीजें होती है विच अलाउज द हीट टू पास थ्रू देम. और इंसुलेटर्स होती है जो कहते हैं नहीं भाई तुम अपने जगह पे रहो, हम जल जाएंगे पर तुम्हें जाने नहीं देंगे अपने थ्रू. ठीक है, तो दोज आर इंसुलेटर्स. सो बेसिकली रबर, वुल, वुड, ठीक है, लकड़ी, ये सारी होती है बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. दे do not let the heat to pass through them, but whereas steel, iron, all these things are conductors, they allow the heat to pass through them. ठीक है, क्लियर बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कन्वेक्शन. दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड आई रियली नीड यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर वेरी वेल. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छे से फोकस करो, आपको सब समझ आएगा. तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस कन्वेक्शन हैपेंस इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, बेसिकली फ्लूइड्स. आप क्या बोल सकते हो, लिक्विड्स और फ्लूइड्स को वी कैन ऑल्सो कॉल देम, लिक्विड्स एंड गैसेस को वी कैन कॉल देम फ्लूइड्स. ठीक है, बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है एक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ ग्लास जार, उसमें पानी भर दिया और 1 pinch of potassium permanganate डाल दिया. पोटेशियम परमंगनेट इज पिंक इन कलर एंड यू माइट सी समवेयर एल्स दैट की इट इज रिटन एज, हाउ डू आई से it can be written as KMNO4. ठीक है, KMNO4. so this is the formula of potassium permanganate, it is pink in color. तो अब अगर, and now you have kept a burner here. ठीक है, you have kept a burner here. तो यहाँ से हीट जा रही है. अब क्या होगा, पानी जो है इस पोजीशन पे राइट हियर, यहाँ पे, कैन यू सी इट, कैन यू ऑल सी इट? ओके, लेट मी ट्राई अ ग्रीन कलर. तो इस पोजीशन पे राइट हियर पानी सबसे पहले हीट हो रही होगी क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हीट मिल रहा है, करेक्ट? तो ये हीट जो है, जैसे ये हीट हुआ क्या बन गया, ये हो गया थोड़ा सा लाइट, है ना? आपको पता है हॉट एयर और हॉट लिक्विड इज लाइटर देन कोल्ड एयर और कोल्ड लिक्विड, करेक्ट? तो यहाँ पे ये जैसे हो गया, ये क्या हो गया, लाइटर हो गया. तो ये चला जाएगा ऊपर, ट्रांसफर करेगा. ठीक है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जगह हो गई खाली, ये जहाँ पे ये हॉट लिक्विड थे ये हो गई खाली. तो ये क्या करेगी, ये जो यहाँ से जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाएगी ताकि वो जगह ले ले, करेक्ट? ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉट ऊपर जा रहा है और कोल्ड जो है वो बार बार ऐसे आ रहा है. तो ये चीज दोबारा तीसरी बारी ये कंटिन्यूअसली होता रहता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन प्लेस विद इन द बॉडी टू द अदर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है. The hot liquid from here is going upwards. Actual movement हो रहा है, right? पिछले वाले में क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं हो रही थी, सिर्फ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी थी एंड दे गेव पास द एनर्जी टू द अदर मॉलिक्यूल. पर यहाँ पे एक्चुअली में वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, got it clear? The process convection, it gives rise to something that is very important for our everyday life, that is sea breeze and land breeze. ठीक है, sea breeze और land breeze होता है, ये आपको कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा मिलेगा. तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं. देखो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द डे आपको पता है कि वाटर की बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए वो बॉइल नहीं होगी. मतलब वाटर की टेम्परेचर है हाई, ठीक, मतलब वाटर takes a lot more time to get heated up. बल्कि this does not happen in case of land. Land क्या होता है, थोड़ा सा हीट दो वो हीट हो जाता है. ठीक है, लैंड जल्दी हीट हो जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे लैंड हीट हो जाता है जल्दी से, तो मतलब यहाँ पे जो एयर होगी that also becomes hot, करेक्ट? और हमने क्या पढ़ा, हॉट एयर कहाँ जाती है, ट्रैवल करती है. हॉट एयर इज लाइटर, तो हॉट एयर क्या करती है, ऐसे आना शुरू करती है. ठीक है, हॉट एयर ऊपर से आना शुरू करती है. अब कोल्ड एयर को दिखता है कि ये जगह तो भाई खाली हो गई, खाली तो नहीं होना चाहिए. तो कोल्ड एयर क्या करती है, कोल्ड एयर भागते हुए आती है ऐसे. ठीक है, कोल्ड एयर
भागते हुए ये खाली जगह को लेने के लिए आ जाता है। अब यहाँ देखो कोल्ड एयर कहाँ से आ रहा है? कोल्ड एयर आ रहा है सी से, क्योंकि पानी ठंडा है, मिट्टी गर्म है, सी से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे सी ब्रीज। ठीक है, जब आपके पास समुंदर से हवा आ रही है लैंड तक, तो यू विल कॉल इट सी ब्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक उल्टा होता है। अब क्या होता है, पानी चलो पूरे दिन में आफ्टर द आफ्टरनून ऑल्सो इतनी देर से हीट मिल रही है, तो वो गर्म हो गई। अब पानी को हीट लूज करने में भी टाइम लगता है, तो ये पानी अभी भी गर्म है, ठीक है। पर लैंड क्या करती है? लैंड जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडा भी हो जाती है। अब लैंड क्या करेगी? लैंड के पास है कूल एयर और इसके पास है वार्म एयर, तो अगेन फ्रॉम द सी द वार्म एयर विल मूव दिस साइड। ठीक है, वार्म एयर जैसे मूव करना चालू करेगी, ये फिर ठंडी सी हवा जो है ये देखेगी कि भाई साहब यहाँ तो जगह खाली हो गया, जगह तो खाली नहीं होना चाहिए, तो ये भागती हुई आएगी यहाँ पे। तो इस बार हम क्या देख रहे हैं? ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है? The cool breeze is coming from land this time, so we will call it land breeze. We will call it what? We will call it land breeze. ठीक है, clear guys? What is sea breeze and what is land breeze? सबको समझ आ गया? करेक्ट, चलो ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं और आगे मूव करते हुए दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज रेडिएशन। अब हमने इतने देर में क्या पढ़ा था? एक मीडियम चाहिए होता था, पहले वाले में सॉलिड मीडियम था, दूसरे वाले में लिक्विड और गैस मीडियम था। अब रेडिएशन इज वन सच हीट ट्रांसफर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एट ऑल। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और रेडिएशन का एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं? रेडिएशन का एग्जाम्पल हमें दिखता है कि सन से जो हीट आ रही है, भाई साहब स्पेस में देयर इज नो मीडियम एट ऑल इन स्पेस, बट इवन देन द हीट फ्रॉम द सन reaches us on earth. How does it reach? Radiation. So radiation, you can see it on the first one, radiation is a form of heat transfer that does not require any medium. That's exactly what I told you right now. ठीक है, it can be used for transfer of heat in vacuum as well. Now you might ask me, what is vacuum? Vacuum मतलब होते हैं बिल्कुल खाली जगह, जहाँ पे कोई कुछ atoms, molecules, substances, nothing is available, उस जगह को बोलते हैं vacuum। ठीक है, तो वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। मूविंग ऑन, uses electromagnetic waves which transfer heat from one place to another. इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इसमें इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है? हेल्प करती है to move heat from one place to another, and it is the most important method of heat transfer। मतलब इसको कुछ नहीं चाहिए पर हीट ट्रांसफर हो जाएगी, किसी भी तरह हीट ट्रांसफर हो जाएगी, इसको कुछ नहीं चाहिए। सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन? वी मीन टू से दैट इट इज द मोस्ट पोटेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। बिना किसी चीज के भी हीट ट्रांसफर कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब एक लास्ट चीज देखेंगे जिसमें हम तीनों चीजों को आराम से समझ जाएंगे। तो क्या हो रहा है? देखो, एक तवा लिया और उसमें कुछ पानी डाला यहाँ पे, तो क्या होगा? अब अगर उस तवे के पास अगर स्टील की ही हैंडल है, तो यहाँ पे हो जाएगी कंडक्शन। करेक्ट, यहाँ पे कंडक्शन हो जाएगी आपके पास, राइट? इधर राइट हियर इट इज कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन हो रही है। और सिंस हमने पानी लिया था, तो पानी के वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? कन्वेक्शन प्रोसेस भी हो रही है। ठीक है, और जो ये हॉट प्लेट लिया, मान लो ये हॉट प्लेट लिया या इलेक्ट्रिक हीटर ले लिया, तो इसमें से क्या हो रही है? आप दूर पे भी हो, इफ देर इज नथिंग दैट इज टचिंग, you are not touching the heat from the electric heater, but you still feel the heat, right? You still feel the heat. So what is happening? Radiation. तो एक ही जगह पे तीनों mode of transfer of heat is happening: conduction, convection and radiation. All right guys, are you clear? So I hope that I have finished the chapter already. I hope that you have also understood this.